Guys, good evening, one and all. How are you? Good evening, one and all. Good evening, good evening. Deepak, good evening. Murlidhar sir, Archana ji, Nalanda, Roshank. Good evening, all. Good evening, all. Okay. Nandini, good evening. Shraddha, good evening. Good evening, Shraddha. Good evening, Nandini, Deepak, Murlidhar sir, Archana, Nalanda, Roshank. Good evening, all. Once again, good evening to one and all. Now, my dear friends, Dr. Naneshwar, good evening, good evening, all. Fine, fine. Okay. Let's have a little discussion about what we discussed day before. Day before हमने क्या discuss किया था? That's my question to all of you. What we discussed the day before. Good evening, Meera. Good evening. What we discussed the day before. Nandini, what we discussed the day before. हम लोगों ने discuss क्या किया था day before. What we discussed. That's what I want to know. What we discussed. Yeah. Come on. I think we discussed about ought to. We discussed about need not. And we discussed about dare not. सही है ना? We discussed about ought to, dare not, and need not. These three modal auxiliaries we already discussed. Yes, day before. Right? Yes, day before हमने ये तीन modal auxiliaries के बारे में कुछ discussion किए थे. Now we are going to discuss about what we are going to discuss about used to. Used to के बारे में हम कुछ बातें यहाँ पे कर लेंगे. Yeah. Nandini, yeah, ought to, correct. Dr. Nareshwar, ought to, need not, dare not. All those things we discussed, already we discussed all those things. Now our concentration or just we are going to discuss about what? We are going to discuss about used to. Now say, here is also the confusion. जैसे मैंने आपको need not, dare के बारे में कुछ बताया था. ये जो नीड होता है, ये जो डेयर होता है, सही है ना? राइट, व्हाट आई एम टॉकिंग, ये डेयर नॉट नीड नॉट के बारे में जब हमारा डिस्कशन हो चुका था, एट दैट मोमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो डेयर है, ये नीड है, इट वर्क्स एट थ्री प्लेसेस. यस, इट वर्क्स एट थ्री प्लेसेस. इट वर्क्स विथ थ्री स्पेसिफिक सिचुएशंस, यू नो. So what those situations are? Those situations are that need works as a noun, need works as a main verb, and that need works as a functions as helping verb, means that is modal auxiliary. Yes, need के ये triple layer uses I discussed with you. Same way I discussed about what? Dare to, you know, that dare भी जो होता है, क्या होता है? Noun भी होता है, verb भी होता है, and that one helping verb as a modal auxiliary also we can use that dare not. That was our discussion day before. Rupali, good evening. Rushank, good evening. Right, so we discussed already these things. Now concentrate on used to के ऊपर आप थोड़ा concentrate करो. जैसे ही आप used to के ऊपर concentrate कर लोगे, आपके दिमाग में और एक आएगा, ये यूज नाम का वर्ब भी आएगा आपके दिमाग में. चलो यूज करो. हम बोल लेते हैं, आई यूज दिस, आई यूज दैट. राइट, शी यूजेस, I used that, you know, that I used that pen, she used that pen, I use that particular pen, you know, I use this matter, I use that matter, you know, that. It's in this way. Yes, उपयोग करने असा बोलण्यासाठी, to talk like this, you know, we use. देखो, we use, हम use कर लेते हैं, है ना? अपन use करतो, what? Use, you know, that याच्यासाठी आपण use चा उपयोग करतो. अंडरस्टँड? बऱ्याच वेळेस आपण असं म्हणतो, त्याचा उपयोग काय आहे? व्हॉट्स द यूज, इथला जो यूज आहे, व्हॉट्स द यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग, या सिच्युएशन मधला जो यूज आहे, दैट यूज इज इन द फॉर्म ऑफ द नाउन. यहाँ पे वो जो यूज है, यहाँ पे इट्स फंक्शनिंग एज अ नाउन, यू नो. तो यही जो यूज है, इट फंक्शंस एज नाउन, it functions as a verb,
एंड नाउ कॉन्सेंट्रेट, यूज्ड टू, हम बात कर रहे हैं यूज्ड टू की, यहां पे यूज को ईडी आ चुका है और उसके सामने टीओ टू है, used to, you know. So what is this? This is a helping verb. This is modal auxiliary. It is not the past of use. ये use का past नहीं है. So what is this? This is modal auxiliary and that's what we have to remember. That's what we have to think. अरे ये modal auxiliary है और ये modal auxiliary के सामने हमें use करना होता है verb का first form, verb का first form, verb का first form, you know. सही है ना? Verb का first form. तो कैसे होता है? Used to, राधिका गुड इवनिंग, used to work, used to go, used to play, used to think, used to play together, used to leave, right? Used to leave, used to talk with him, used to, that is complete helping verb. ये पूरा का पूरा helping verb का सेट है, used to, और उसके सामने हम यूज करने जा रहे हैं verb का first form. क्या है? verb का first form we are gonna use after that used to, you know. तो चलो concentrate कर लो, तीनों में फर्क कर लो, तीनों में फर्क कर लो. Just differentiate, yes, among three, you know. तीनों में differentiate करो. Number 1, number 2 and number 3. Number 1 जो है वो है use, वो है use, वो है noun, वो है noun. इसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है, इसका यूज ए है, इसका यूज ओ है. ऐसे जब बातें होती है इन दिस सिचुएशन दैट यूज इज एज द नाउन, यूज प्लेज द रोल ऑफ द नाउन. यस, इट कम्स एज द नाउन इन द सेंटेंस. दैट इज क्लियर. इज इट क्लियर? सबको क्लियर होने जा रहा है? If you are going to get clear, please type yes in the chat box. ये आपके दिमाग में जा रहा है तो आप chat box में yes type कर सकते हो. Because we are discussing about what? We are discussing about used to. Used to discuss करते समय ये use के 3 uses है, अलग अलग functions है ये use के. ये 3 functions मैं आपके सामने रख रहा हूं. 3 types of use आपके मैं सामने यहां पे रखने जा रहा हूं. तो एक जो use है, एक जो यूज है, मीरा लिख रही है यूज ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम. या यूज योर वैल्यूएबल टाइम, दैट इज ट्रू, यू नो. तो एक मैं आपको बोलने जा रहा हूं दैट वन यूज ऑफ दैट यूज इज एज अ नाउन, यू नो. नाउन समझ में आता है आपको? नाउन, नाउन, नाम जो बोलते हैं, सही है. ये नाउन बोल के हम यूज कर लेते हैं. दूसरा जो उसका यूज होता है वो होता है वर्ब बोल के. व्हाट इज दिस? वर्ब, एक्शन वर्ब बोलते हैं हम उसे, एक्शन वर्ब. वो वर्ब होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ action verb, you know. Action express करने वाला use, you know. For example, I can say I use ink pen. I use ink pen. मैं ink pen use कर लेता हूँ. I use ink pen. She uses ink pen. She uses ball pen. She uses what? Some, yes, miss, branded things, you know. So what we are talking? Uses. She used that matter. This is used one. This is used one. So what is this? Just we are going to talk about a verb. ये action वाला verb है. जब कभी भी noun के सामने, जब कभी भी noun के सामने वो verb आता है, right? वो particular tense में होता है, तो वहां पे हमें सोचना है. What हमें वहां पे तय करना है? What? Yes, that is use and that is in the form of verb. वो verb के form में है. I use. Yes, मीरा ने लिखा है. I use a RoboMax pen, you know. I use, मैं use कर लेता हूँ. She uses ink pen. वो ink pen use कर लेती है. Past में चले जाते हैं तो she used ink pen in the exam. उसने एग्जाम में ink pen use की है. She used ink pen in exam, you know. She will use costly things. वो costly things use कर लेगी. She is using my computer. Present continuous tense, वो मेरा कंप्यूटर यूज कर रही है. She was using my computer. वो मेरा कंप्यूटर यूज कर रही थी. और आप सोचने जा रहे हो she will be using my computer. वो मेरा कंप्यूटर यूज कर रही होगी. She has used my computer. उसने मेरा कंप्यूटर यूज किया है. प्रेजेंट परफेक्ट. She had used my computer before I came. मैं आने से पहले उसने मेरा कंप्यूटर यूज किया है. She had used, you know, past perfect की बात हो रही है. She had used my computer before I
came, you know. So that's what I'm going to keep in front of you. Yes, 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 my dear friends, you have to understand what used. यहाँ पे मैं यहाँ पे जो भी यूज कर रहा हूं, तो ये यूज करते समय यहाँ पे वो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, यस टेंसेस में मैं उसे, यस वी आर यूजिंग, यू नो, टेंसेस में हम उसे यूज करने जा रहे हैं, टेंसेस में हम उसे यूज कर लेते हैं। यस तो टेंसेस के हिसाब से मैंने आपके सामने वो यूज, एक्शन वाला यूज रखा है, एक्शन वाला। दूसरा यूज मैं रखने जा रहा था आपके सामने, व्हाट, दैट वाज यू नो एज अ नाउन, यू नो दैट, व्हाट, यूज ऑफ द कंप्यूटर, टेल मी द यूज ऑफ कंप्यूटर। देखो द यूज लगा रहा हूं, द यूज लगा रहा हूं, द यूज लगाने जा रहा हूं, है ना। टेल मी द यूज, द किसके पीछे लगता है, द जो होता है कभी भी नाउन के पीछे आता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग, टेल मी द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज मुझे बताओ। यूज यहां पे नाउन है, यहां पे नाउन का काम कर रहा है, यू नो दैट। आई डोंट नो what is use of that particular thing, what is use that is what, that is noun, you know that। ये सब कुछ समझ में आना चाहिए, सही है ना। एंड नाउ देखो मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, आई यूज्ड। देखो वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस इट इज, थोड़ा रुको और सुनो। यस आई यूज्ड टू यूज, आई यूज्ड टू यूज डेल्स लैपटॉप, आई यूज्ड टू यूज डेल्स लैपटॉप। चलो आप मुझे बोलने जा रहे हो ये क्या है, आई यूज टू यूज डेल्स लैपटॉप, मैं डेल का लैपटॉप यूज करता था। व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ द सेंटेंस इट इज, जस्ट यू आर गोइंग टू पुट, यू आर गोइंग टू यूज, यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ द सेंटेंस इट इज, एंड जस्ट यू आर गोइंग टू राइट आई यूज टू यूज। इज इट करेक्ट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस, आप मुझे बताने जा रहे हो। आई यूज टू यूज डेल्स कंप्यूटर, I used to use a Dell's computer. Just you are going to tell me, yeah. Is it correct or wrong, Meera? Is it correct or wrong? ये sentence correct है या wrong है? आप बताने जा रहे हो। Come on. Yeah. Number one, use to या मॉडल ऑक्सिलरी है, करेक्ट है। यूज टू या मॉडल ऑक्सिलरी है, एंड यूज इज मेन वर्ब है। यू आर एब्सोल्युटली राइट रूपाली इज करेक्ट। नालंदा यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज करेक्ट सेंटेंस। यू नो श्रद्धा, इट इज राइट सेंटेंस, बिकॉज जो पहले वाला जो यूज टू है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी, और जो दूसरे वाला यूज है टू के सामने वाला, दैट इज मेन वर्ब, वो मेन वर्ब होता है, सही है ना। नाउ दिस इज माई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, ये मेरा आप सभी को चैलेंज है। आप लोग ये तीनों यूज मैंने जो बताया आपके सामने, वर्ब वाला यूज, नाउन वाला वर्ब यूज, एंड हेल्पिंग वर्ब वाला यूज, यू नो दैट, तीनों के एग्जांपल्स आप चार्ट बॉक्स में लिखने वाले हो। तीनों के एग्जांपल्स आप चार्ट बॉक्स में अभी लिखोगे, नाउन वाला यूज, वर्ब वाला यूज, एंड मॉडल ऑक्सिलरी वाला यूज। नाउन वाला यूज, वर्ब वाला यूज, एंड मॉडल ऑक्सिलरी वाला जो यूज होता है, ये तीनों के यस सेंटेंसेस एंड सम एग्जांपल्स यू आर गोइंग टू राइट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन। Come on, write it, I'm waiting. या मीरा ने लिखा है, मी माझ्या कामासाठी डेल लॅपटॉपचा वापर केला। मीरा आपने लिखा है, मी माझ्या कामासाठी डेल लॅपटॉपचा वापर केला। Somewhere little bit confusion is there. Just we are going to correct that sentence. वो sentence हम correct कर लेंगे, थोड़ी देर में उसे correct कर लेंगे। You know, come on. Yeah, give me examples. मुझे examples चाहिए. I want some examples. You know, right? Use as a noun, use as a verb, and use as a helping verb.
just I want some examples and you are going to write some examples, आप कुछ examples लिखने जा रहे हो. Use as a noun, use as a verb and used to as a helping verb. ये सभी के examples one by one just you are going to type in the chat box. आप chat box में type करने जा रहे हो. Let's see who will type it correct, who will do it correct, and just who will commit that the mistake, and accordingly just we are going to discuss about the uses, ये पहले हमें दिमाग में आना चाहिए. Used to सीखने से पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये particularly क्या है. पहला use क्या होता है, used to क्या होता है, and use as a verb क्या होता है. चलो, रूपाली लिखती है used to go to college on bicycle. Okay, used as a modal auxiliary, correct. Use some branded clothes, use some branded clothes, that's verb, you are correct, yes. Nandini likhti hai I use a blue colored handbag. Okay, yes, that is verb. Marks are of a great use these days, yeah, yes, that is noun. And she used to swim every day, that is helping verb, correct. Meera likhne ja rahi hai I use, yes, Lenovo and Oppo phone. I used wireless router for internet, that. ये दोनों का भी यूज जो होता है, दोनों का भी जो आपके सेंटेंसेस है मीरा, both sentences are in the form of verb. ये दोनों का फॉर्म जो है verb का है. डॉक्टर ज्ञानेश्वर ने क्या करेक्ट सर लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है. I use Oppo mobile. I used to use Oppo mobile. That is correct, right. आपका श्रद्धा नाउन बोल के जो यूज का यूज होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. हनुमान I used to exercise every day. लेकिन आजकल तो कुछ नहीं कर रहा है, आजकल तो नहीं मिल रहा है, आजकल तो बातें नहीं कर रहा है, आजकल तो बहुत नहीं कर रहा है. जो तो बहुत कुछ करता था हनुमान के लिए, तो बहुत कुछ करता था लेकिन आजकल तो कुछ नहीं कर रहा है. यू आर वेरी न्यूट्रल एंड यू आर फार अवे फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, okay, whatever. Now, okay, so these are the three things just we have to remember regarding used to की बातें करते समय ये use पक्का क्या है ये हमारे समझ में आना चाहिए, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए. and I'm sure ये आपके दिमाग में आ चुका है, आपके समझ में आ चुका है. रेवती has also used something. I used to write a poem, correct. modal auxiliary है. I use nice pen, ये verb है, correct है. नालंदा लिखती है I use blue pen, verb है. या हेल्पिंग वर्ब बोल के शी इज यूजिंग माई मोबाइल. बेटे यहाँ पे भी शी इज यूजिंग माई, ये मेन ही वर्ब है. यूज को देखो, इज को मत देखो, यूज है यहाँ पे मेन वर्ब है. आई यूज टू गेट अप अर्ली, यहाँ पे जो यूज टू है ना नालंदा, गेट अप के पीछे जो यूज टू है दैट यूज टू इज मेन वर्ब. वो जो यूज टू है वो मेन वर्ब है, बाकी यस यूज टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ये आपको रिमेंबर करना है. Yeah, don't say sorry and all kind of the things. Hanuman, I don't believe in the sorries and all. Just work well, just participate in each and everything. Just be active and that proactive. This much is our wish. There is not any kind of the question of sorry and all, Just you do the best, that much is our wish, Fine. Okay, that is used to, Fine. So what I'm going to tell you, this used to का negative भी होता है. This used to का negative भी होता है. So how we are going to make negative? तो negative करते समय I used not to. देखो I used to, ये जो है ना used to, दोनों के बीच में not रखना है, दोनों के बीच में not रखना है और बोलना है I used not to, I used not to. ऐसे यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा. वो जो नेगेटिव है वो कैसे करना है आपको. I used not to meet him. Modal auxiliary का use कर रहा हूं मैं. I'm going to use over here modal auxiliary, I used not to do. I used not to do. This is modal auxiliary, What is the meaning of this? कहाँ पे इसका use हो लेता है used to का, जो भी used to है as modal auxiliary जब हम उसे use कर लेते हैं at that moment हमें सोचना पड़ेगा इसका use क्या होता है. तो इसका use होता है, देखो आप लोग सभी सुन लो. What is the use of used to? What is the use of used to? देखो यही सेंटेंस में मैंने दो use किए हैं. यही सेंटेंस में व्हाट इज द यूज ऑफ यूज टू, व्हाट इज द यूज ऑफ यूज टू, यही सेंटेंस में ना मैंने दो यूज के यूज किए यहाँ पे, दो यूज.
एक होता है व्हाट इज द यूज, ये नाउन है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ यूज्ड टू। ये जो यूज्ड टू है वो मॉडर्न ऑक्सिलरी बोल के हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। एक ही सेंटेंस में जस्ट आई एम गोइंग टू यूज, टू यूज, यू नो, और एक जो होता है नाउन बोल के है, और दूसरा जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब बोल के हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सही है। नाउ देखो क्या होता है, ये यूज टू का मतलब क्या होता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लिटिल बिट रिमेंबर, हमने उड़ के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट उड़ के बारे में हमारा कुछ एक डिटेल डिस्कशन हो चुका था। जब कभी भी मैंने उड़ के बारे में कुछ आपको बोला था ना, उस वक्त आपको एक चीज और एक यूज ऑफ उड़ मैंने बताया था, वो था हैबिचुअल पास्ट। यू नो दैट मीन्स whatever the things we would do, जो भी चीजें, जो भी एक्शंस हम करते थे, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। राइट, एक्शंस हम करते थे लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। एक्शंस हम करते थे लेकिन अब हम नहीं करते हैं। सही है ना, करते थे, कुछ हैबिट थी, पास्ट में एक रिपीटेड एक्शन थी, पास्ट में एक कुछ बार बार होने वाली एक्शन थी, एक रिपीटेड एक्शन थी, करते थे हम, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। करते थे लेकिन वो अभी स्टॉप हो चुका है। पहले तो हम करते थे, पास्ट में कुछ रिपीटेड एक्शन होती थी, सर्टेन इंटरवल के बाद वो एक्शन रिपीट होती थी, लेकिन वो अभी स्टॉप हो चुकी है। वेरी सिंपल, द एक्शन विच वॉज routine or that the repeated, देखो, action which was repeated and routine in the past, ध्यान से सुन लो, action which was repeated, action which was repeated and routine, लेकिन कब के, पास्ट वाले, और एक कंडीशन क्या है, अभी वो स्टॉप हो चुके हैं, अभी वो एक्शन स्टॉप हो चुकी है, अभी वो एक्शन कंटिन्यू नहीं है। एट दिस मोमेंट, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये प्रेजेंट मोमेंट में वो एक्शन जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर लेती है। दैट एक्शन इज नॉट एग्जिस्टेड इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, बट दैट एक्शन वाज used to be or repeated, continue, yes, when in the past, एक के बाद एक ऐसा repeated होती थी, habitual थी, और past में वो routine थी, लेकिन अब वो action बंद हो चुकी है, stopped, continue थी, लेकिन अभी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जो भी हमें बातें करनी होती है, तो ये बातें करने के लिए हमें यूज करना होता है यूज्ड टू, और जो भी एक्शन हमें बात करनी है, उस एक्शन का नाम मींस उस एक्शन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस एक्शंस वर्ब फॉर्म, used to plus actions first form means verbs first form। नाउ मुझे बता, ऐसे कौन सी सिचुएशंस होती है, पास्ट में कुछ एक्शन कंटिन्यू थी लेकिन अभी वो स्टॉप हो चुकी है, ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं, आप यहां पे चैट बॉक्स में टाइप करने जा रहे हो। कम ऑन, you are going to type such situations in the chat box। यही situations आप chat box में टाइप करने जा रहे हो कि ये वो कौन सी situations थी, कौन सी situations में ऐसे होता था लेकिन वो अभी स्टॉप हो चुकी है। आप आपका खुद का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 2-3 एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल्स फ्रॉम यू, जो रिपीटेड थे, जो कंटिन्यू थे, वो रूटीन थे, लेकिन अब वो स्टॉप हो चुके हैं। आपकी एक्शन हैबिचुअल पास्ट में जो एक्शन रिपीटेड होती थी, बार बार होती थी, रूटीन जैसे थी, यस वो रिपीटेडली होती थी, यस आफ्टर सर्टेन इंटरवल वो रिपीट होती थी, आपको वो आदत थी, आपकी वो हैबिचुअल थी, यस रेगुलर थी, रूटीन थी, हर दिन होता था, कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद कुछ होता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं होता, अब स्टॉप है। ऐसे एक्शंस आप खुद के एक्शंस, ऐसे आपके खुद के एक्शंस अभी आप चैट बॉक्स में मेंशन करने जा रहे हो। कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। यही आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। यस, इन द चैट बॉक्स, अभी चैट बॉक्स में आप टाइप करने जा रहे हो
क्या होता था, क्या आप करते थे कि जो अभी आपने स्टॉप किया है। श्रद्धा लिखने जा रही है आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज। श्रद्धा आपका परफेक्ट है। दीपक ने लिखा है आई यूज्ड टू रीड रामायण। गुड गुड दीपक, आई यूज्ड टू रीड रामायण। मैं रामायण पढ़ता था लेकिन अभी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन बचपन में जब कभी भी वहां मैं रामायण, तब मैं रामायण पढ़ता था लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ता हूं। नंदिनी लिख रही आ रही है आई यूज्ड टू विजिट माई फ्रेंड्स वीकली। मैं मेरे फ्रेंड्स को वीकली विजिट करती थी, लेकिन ड्यू टू द कोरोना, ड्यू टू दिस पेंडेमिक, एवरीथिंग हैज गॉट स्टॉप्ड नाउ। सब कुछ यहाँ पे रुक चुका है और आप अभी वीकली आपके फ्रेंड्स को नहीं मिलते हो। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और अब इस सिचुएशन में जो पास्ट वाली जो रिपीटेड एक्शन थी उसे हम मिस कर रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं और बोलने जा रहे हैं अरे यार मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे करती थी, लेकिन वो अभी सब कुछ स्टॉप हो चुका है, रुक चुका है। ऐसे ही उसका मीनिंग होता है। नालंदा निकली जा रही है आई यूज्ड टू वॉच टीवी आस एंड आस, यू नो दैट, राइट? आस एंड आस, यू नो दैट, राइट? आई यूज्ड टू वॉच टीवी। मैं बहुत टीवी देखती थी, घंटों में टीवी देखती थी, लेकिन अब मेरे समझ में आ चुका है वॉचिंग टीवी इज बकवास, वॉचिंग टीवी इज टाइम पास। नाउ I am not going to watch any TV. I have stopped to watch TV. अब मैं टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं देखती थी। I used to watch TV. This is used to. Come on, come on. आप आपके चाइल्डहुड के बारे में आप लिखने जा रहे हो। आप आपके बचपन में क्या क्या करते थे जो आप अभी नहीं कर लेते हो। I used to go with my friend. Okay. दीपक बोल रहा है I used to swim in the river with my friends. दीपक you are absolutely right. लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं करने जा रहे हो। मीरा ने कुछ डिलीट किया है, क्यों डिलीट किया है I don't know. That was correct, you know. रूपाली लिखने जा रही है I used to read so many books. मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी। I used to read so many books, you know. रुशांक लिखने जा रहा है I used to speak in front of people in school day. जब मेरे स्कूल डेज थे, उस स्कूल डेज के टाइम में आई यूज्ड टू स्पीक, यू नो। हनुमान लिखने जा रहा है आई यूज्ड टू स्पीक ऑन द स्टेज। मैं स्टेज के ऊपर बातें करता था, लेकिन अब स्टेज ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन तो हम बातें कर सकते हैं, हम करने जा रहे हैं और हम करते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर लोगों के सामने ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम्स एंड जो फंक्शंस है वो सब कुछ आप उसके ऊपर रुकावट है और अभी आप मिस कर रहे हो। मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे करती थी, ये आप मिस कर रहे हो और यहाँ पे लिख रहे हो। नालंदा निकले जा रही है आई यूज्ड टू प्ले चेस विथ माई फ्रेंड्स। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ चेस खेलती थी, ऐसे नालंदा यहाँ पे लिखने जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम करते थे लेकिन अब हम नहीं कर लेते हैं। सही है, हम वो कर लेते थे लेकिन अब हम वो नहीं कर लेते हैं। सही है, तो ऐसे सिचुएशन के बारे में आप लिखने जा रहे हो। रेवती लिखने जा रही है, रूपाली लिखने जा रही है आई यूज्ड टू सिट ऑन थर्ड बेंच। ओके ओके इन स्कूल। रेवती लिख रही है आई यूज्ड टू वेयर जीन्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में थे तो हम जीन्स पहनते थे। ऐसे यहाँ पे रेवती लिखने जा रही है, सही है, कॉलेज में थे तब, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेवती अब टीचर हो चुकी है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। वो शेयर कर रही है उसी के फ्रेंड के साथ, किसी के साथ। अरे कॉलेज में थे ना तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, हम फ्री थे, बहुत ही हम एंजॉय कर लेते। और तुझे मैं क्या बताऊं, मैं जीन्स भी पहनती थी कॉलेज में, लेकिन अब मैं पहनती नहीं हूं। कॉलेज में जब थी, यस व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई यूज्ड टू वियर जीन, आई वुड वियर जीन। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है। बबीता जी गुड इवनिंग, बबीता जी गुड इवनिंग। आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है क्या गाइस, ये जो यूज्ड टू है ना, ये यूज्ड टू के जगह ही, इस यूज्ड टू के जगह ही यूज्ड टू को रिप्लेस करके हम वुड भी यूज कर सकते हैं। क्या इसी यूज्ड टू के जगह यूज्ड टू को निकाल के यूज्ड टू को रिप्लेस करके यहाँ पे हम वुड भी यूज कर सकते हैं। क्या वुड भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू को निकालो और यहाँ पे वुड हम यूज कर सकते हैं। जस्ट यू रिमूव दैट यूज्ड टू और उसी के जगह हम वुड भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। यूज्ड टू और वुड ये दोनों भी जो है एक ही मीनिंग वाले हैं, एक ही इनका मीनिंग होता है और दोनों एक दूसरे के लिए हम यूज कर सकते हैं। और आई कैन से लाइक दिस, आई वुड सिट ऑन द लास्ट बेंच, यू नो। हम लास्ट बेंच के ऊपर बैठते थे, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं आई यूज्ड टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। आई यूज्ड टू सिट और आई वुड सिट, दोनों में से
कौन सा भी यूज कर लो, दोनों भी राइट है। आई यूज टू सिट और आई वुड सिट, दोनों के दोनों करेक्ट है। दोनों में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। आई यूज टू और आई वुड, आई यूज टू और आई वुड, दोनों में से एक आप कोई भी ले लो और यूज कर लो, दोनों का मीनिंग एक ही है। उड़ का भी मतलब, उड़ का भी यूज हम कर लेते हैं पास्ट वाले जो हैबिचुअल एक्शंस थी, वो हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए हम उड़ का यूज कर लेते हैं। और वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स यूज कर लेते हैं हम यूज्ड टू का पास्ट वाली हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज कर लेते हैं। यूज्ड टू एंड वुड, यूज्ड टू एंड वुड दोनों एक जैसे ही है और एक दूसरे को वो दोनों भी रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों एक जैसे ही है और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। यही हमें दिमाग में रखना है, यही इसके ऊपर हमें काम करना है। और समझ लो, पास्ट जो हैबिचुअल एक्शन हमें बताने होती है, पास्ट की रूटीन एक्शन हमें बतानी होती है, पास्ट में रिपीटेड एक्शन जो होती है वो हमें बतानी होती है, तब दोनों में से एक आप यहाँ पे यूज कर लेते हो। सरुताई गुड इवनिंग, सरू गुड इवनिंग। यहाँ पे हम दोनों में से एक यूज कर लेते हैं। एक होता है यूज्ड, दूसरा होता है वुड। वुड और यूज्ड दोनों में से हम कुछ एक यूज कर लेंगे और उसी का मीनिंग होता है सेम। दोनों का मीनिंग होता है सेम। मीन्स जो भी है हैबिचुअल, जो भी है रूटीन, जो भी है रिपीटेड एक्शन जो पास्ट में होती थी लेकिन अब वो नहीं होती है, अब वो रुक चुकी है, उसके ऊपर कंप्लीट रुकावट है, अब वो स्टॉप हो चुका है, ऐसे बातें करने के लिए हम यूज कर लेंगे यूज्ड टू एंड वुड, सही है। इसका नेगेटिव भी हम कर लेते हैं। कैसे? आई यूज्ड नॉट टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। आई यूज्ड नॉट टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। आई यूज्ड नॉट टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, हम फर्स्ट बेंच के ऊपर बैठते नहीं थे। आई यूज्ड नॉट टू, वो जो यूज्ड टू है, ये दोनों के बीच में नॉट रखो। यूज्ड टू जो है ना, उन्हीं के दोनों के बीच में सिर्फ हमें नॉट रखना है और हमें बोलना है आई यूज्ड नॉट टू, आई यूज्ड नॉट टू। दैट्स गोइंग टू बी द नेगेटिव, इसी को हमें क्वेश्चन करना होता है तो आगे हमें लेना पड़ेगा यूज्ड टू, सबसे आगे हमें लेना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस देना पड़ेगा यूज्ड को, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे चलना है? क्वेश्चन करते समय, जब कभी भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा यूज्ड। क्या लेना है? यूज्ड। क्या लेना है? यूज्ड। उसके बाद सब्जेक्ट। क्या लेना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें लेना है टू, TO2, यूज्ड, सब्जेक्ट एंड टू एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहा हूं? क्वेश्चन की बात। यस सर, कैन वी यूज वुड इन पास्ट एंड फ्यूचर? हाँ, यूज कर लेते हैं। पास्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी होता है, इसके बाद मैं बता दूं, लेकिन ये पहले कंप्लीट कर लेता हूं और उसके बाद रेवती जी आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। पहले ये मुझे कंप्लीट करना है। ओके, ध्यान दे दो। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन, तो जब कभी भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन करते समय जो वो यूज्ड होता है वो यूज्ड एट द बिगिनिंग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे कोई लिखेगा, शायद नंदिनी आप लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, आप एक क्वेश्चन लिख लो यूज्ड टू से जो भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नंदिनी, यू आर गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। नालंदा, नंदिनी, या आप कोई भी आप एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो। विच वन? कौन सा क्वेश्चन? यूज्ड टू का क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, आपको वही लिखना है। जस्ट यू आर गोना राइट दैट वन क्वेश्चन व्हिच वी कैन प्रिपेयर विद यूज्ड टू, यूज्ड टू हम करते थे, यस करता था, करती थी। जब कभी भी हमें ऐसे बातें करनी होती है, मराठी में हम बोल लेते हैं मी करत होतो, करत असे, यस मी करत होतो, करत असे, असं जेव्हा तुम्हाला बोलायचं असेल, यस तेव्हा
तुम्ही यूज टू या हेल्पिंग वर्बचा वापर करताय आणि जे काही तुम्ही करत होता ती जी ऍक्शन आहे ती टूच्या समोर ठेवताय. जे काही तुम्ही करत होतात ती जी ऍक्शन आहे ती आपण टूच्या समोर ठेवतोय. अंडरस्टँड इट. हम करते थे, मी करत होतो, मान्य हे म्हणण्यासाठी यूज टूचा आपण वापर करूया आणि टूच्या समोर जी कोणती क्रिया करत होतो त्या क्रियेचं नाव म्हणजेच कसा, यूज टू मीट, यूज टू सिंग. कॉलेजमध्ये असताना मी गाणे म्हणायचो, आय यूज टू सिंग. येस येस, मी त्याच्याशी बोलायचो, आय यूज टू टॉक विथ हिम, लाईक दिस, यू नो. तर आता याचाच जेव्हा आपल्याला क्वेश्चन करायचा असेल, जब कभी भी इसी का हमें क्वेश्चन करना है, आप ध्यान कर लो यहाँ पे ये जो यूज्ड है ना ये हेल्पिंग वर्ब है. यूज्ड है ना ये हेल्पिंग वर्ब है. तो इसी से भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे क्वेश्चन करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. इन दिस सिचुएशन जब कभी भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है और ये जो यूज्ड है हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब ही है. तो जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेर, शैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी के सभी हम एट द बिगिनिंग ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए. इन दिस फैशन ओनली. ऐसे ही यूज्ड को भी हम सामने ले लेंगे. सही है. और वो जो टू है ना, वो जो टू है वो सब्जेक्ट के सामने रख लेंगे, वो उसे वर्ब के साथ अटैच कर लेंगे, वर्ब के साथ अटैच कर लेंगे, वर्ब के साथ अटैच कर लेंगे और हम बोल देंगे यूज्ड ही टू गो. चलो यहां पे नंदिनी ने लिखा है, रूपाली ने लिखा है यूज्ड यू टू टॉक विथ एनीवन. यस, एनीवन, एनीवन की जगह समवन भी चलेगा. नंदिनी बोल रही है यूज्ड ही टू रन एवरी डे. क्या वो हर दिन भागता था, रनिंग कर लेता था? यूज्ड ही टू रन एवरी डे. डॉक्टर ज्ञानेश्वर ने लिखा है यूज्ड यू टू गो टू स्कूल रेगुलरली. क्या आप स्कूल को रेगुलरली जाते थे? यूज्ड यू टू गो टू स्कूल रेगुलरली. क्या आप स्कूल को रेगुलरली जाते थे? दीपक ने लिखा है यूज्ड यू टू टेक टी. क्या आप चाय लेते थे? श्रद्धा लिखती है What used you to do in your childhood? ओके, आपके चाइल्डहुड में आप क्या करते थे? रुशांक लिखने जा रहा है used he to do exercise. करेक्ट. नालंदा निकले जा रही है used she to play. नालंदा गलत हो गया. यस, what used she, यस उसके सामने to then play आना चाहिए. आपने वो जो play है ना, to क्रिकेट के पीछे लगाया, दैट इज गलत. प्ले के पीछे, वर्ब के पीछे वो टू आना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. दीपक लिख रहा है व्हाट यूज्ड यू टू टेक इन डिनर. आप डिनर में क्या लेते थे? आप डिनर में क्या लेते थे? लेते थे, यू नो. देखो आप लोगों ने सभी ने यहां पे ना कुछ तो लिखा है. यस, यू आर राइटिंग, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट, यू नो दैट. बट वन थिंग जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, किसी ने भी यहां पे ना टाइम नहीं लिखा है. चलो, किसी ने भी यहां पे टाइम नहीं लिखा है. यहां पे जब आप टाइम लिख लोगे ना, क्या बोलने जा रहा हूं मैं, ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर लेता है. तो पास्ट का एक आप कौन सा भी यहां पे टाइम लिख के सेंटेंस कंप्लीट, ये गलत नहीं है. आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक टाइम है वो भी हमें यहां पे क्लियर करना है. तो वो टाइम एक्सप्रेस करने के लिए हमें यहां पे टाइम लिखना पड़ेगा. जो भी पास्ट वाला टाइम है, जो भी पास्ट का जो टाइम आपको एक्सप्रेस करना है, कौन से टाइम की एक्शन आपको बतानी है, उस टाइम को भी मेंशन करो. देन देखो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट प्रिसाइज सेंटेंस हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा. मीरा निकले जा रही है क्या, विच मेडिसिन यूज्ड डॉक्टर टू योर ट्रीटमेंट. यहां पे मीरा आपने क्या किया है, ये जो यूज किया है ना, ये वर्ब बोल के यूज किया है, वर्ब बोल के यूज किया है, मेन वर्ब बोल के सिंपल पास्ट का आपने सेंटेंस लिखा है. तो आपको यहां पे एक काम करना होगा, ये हम यूज्ड टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मीन्स यहां पे हम यूज टू का यूज हम हेल्पिंग वर्ब बोल के कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल के हम यूज कर रहे हैं. तो यहां पे आपको करेक्ट करना है. नंदिनी निकले जा रही है वेयर यूज्ड यू टू गो एवरी संडे. नंदिनी यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू नो. लेकिन एवरी संडे के आगे भी नंदिनी आप टाइम लगा सकते हो और पास्ट का टाइम आप दे सकते हो. कहां जाते थे आप हर संडे, लेकिन कब? लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
यस, थोड़े दिन के पहले, लॉकडाउन के पहले, और उसे आप करना चाहते हो तो प्रिसाइज कर सकते हो। रूपाली लिखने जा रही है वेयर यूज्ड यू टू सिट इन स्कूल। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नंदिनी, ओके। रोशांक बोलता है व्हेन यूज्ड ही टू स्मोक सिगारेट, वो कब सिगार स्मोक करता था, ठीक है। या रेवती लिख रही है यूज्ड सी टू रीड अ बुक, क्या वो बुक पढ़ती थी, करेक्ट है, करेक्ट है यहां पे रेवती का भी। नालंदा लिख रही है व्हेन यूज्ड शी टू मेक ट्रेडिशनल रेसिपीज। ओके नालंदा, यू आर करेक्ट, यू नो। सो इन दिस वे जब कभी भी हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, जो भी हम यूज टू का यूज कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के सभी यूज करने जा रहे हो इसे बाय गिविंग पास्ट वाला टाइम, बाय गिविंग पास्ट वाला टाइम। ये सब करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पास्ट का टाइम देना पड़ेगा, पास्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, और पास्ट का रेफरेंस देके एक स्पेसिफिक टाइम पास्ट का रेफरेंस देके हमें लिखना पड़ेगा। देन प्रिसाइसली ए सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा, और जो भी उसका मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। तो पास्ट की रेफरेंस दे रहे हैं तो पास्ट का टाइम भी हम मेंशन कर लेंगे। दीपक यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन यू वेर इन 10th स्टैंडर्ड which type of dresses used you to wear? Yes, yes, Deepak, very common, very ordinary and very common dresses I used to use when I was in 10th, you know. Yes, when I was in 10th, I used to use very common and ordinary dresses. Yes, I used to use very common and ordinary dresses when I was in the 10th. जब कभी मैं 10th में था तब I used to use very ordinary and common dresses, you know. या दीपक, तो इसी दीपक क्वेश्चन की जो ऑर्डर है यहाँ पे गलत हो चुकी है। कैसे यहाँ पे ऑर्डर गलत हो चुकी है दीपक? यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन पूछना है और उसके बाद वो व्हेन से कनेक्ट करना है। पहले आपने क्या किया है, व्हेन का क्लॉज दिया है आपने, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, तो दैट ऑर्डर इज लिटिल बिट इनकरेक्ट, यू नो। तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेक्ट कर लेंगे उसे दीपक? कैसे पूछोगे आप? विच टाइप ऑफ ड्रेसेस यूज्ड यू टू वियर व्हेन यू वेर इन 10th स्टैंडर्ड, दैट इज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ WH क्वेश्चन। क्यों? WH क्वेश्चन पूछते समय पहले क्लॉज और उसके बाद क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। पहले क्वेश्चन, उसके बाद जो भी क्लॉज है, बच्चे वाला जो क्लॉज है, आप लिख सकते हो और आप उसे प्रिसाइज कर सकते हो। यहां पे ये दीपक आपको ध्यान रखना है। तो वर्ड ऑर्डर आपको चेंज करना है। कैसे करना है? विच टाइप ऑफ ड्रेसेस यूज्ड यू टू वियर व्हेन यू वेर इन 10th स्टैंडर्ड, यू नो। इज देयर विशाखा? विशाखा आप हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कुछ लिखो। आप कुछ नहीं लिख रहे हो, सो समझ आता है कि आप हो या नहीं। इज देयर विशाखा? विशाखा आप प्लेटफॉर्म के ऊपर हो तो आप लिख सकते हो, यू नो। ओके ओके ओके। यार रेवती ने लिखा है यूज्ड टू मेक अ लंच व्हेन ही वाज लिविंग अलोन। तो सब्जेक्ट देना है ही यूज्ड, ओके। क्वेश्चन पूछा आपने, गुड गुड, क्वेश्चन है, ठीक है। How used you to go college in 12th standard? Shraddha, just I used to go on cycle. I used to go on cycle when I was in 12th standard, you know. I used to go on cycle to college when I was in 12th standard. जब हम 12th standard में थे तब हम साइकिल के ऊपर कॉलेज जाते थे, लेकिन अब हम साइकिल के ऊपर कॉलेज नहीं जाते हैं। ऐसे बातें करने के लिए हमें ये यूज करना होता है। चलो आपके लिए मैं एक सिचुएशन आपके सामने दे दूं। सिचुएशन ऐसे होती है, घर पे ना आप जब मम्मी पापा से आप कुछ पैसे मांगने जा रहे हो, कुछ पैसे मांगते हो, ये करना है, वो करना है, मुझे न्यू ड्रेस लेना है, कुछ नोटबुक लेना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत बार हमें सुनना पड़ता है, देखो क्या, अरे हम 2 ही ड्रेस पहनते थे, हम 2 ही ड्रेस पहनते थे। देखो सिचुएशन, अरे कॉलेज ना, आप अभी देखो बाइक के सिवाय आप कॉलेज नहीं जाते हो, हम तो पैदल जाते थे, 5 किलोमीटर वॉक करके कॉलेज जाते थे, हम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, हम बहुत पढ़ाई करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। हमें ट्यूशन्स नहीं होते थे, मीन्स हम ट्यूशन्स नहीं करते थे, हम ट्यूशन्स नहीं जाते थे, हम खुद पढ़ाई करते थे, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम they have been spending their time on what? WhatsApp, you know that,
फॉरवर्डिंग मैसेजेस फॉरवर्ड करने में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में हम तो बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। ऐसा आप आपके घर पे सुनोगे। यस, घर पे जो ना दादी माँ होती है, यस, तो दादी माँ का भी आप सुनोगे। आजकल की लड़कियां देखो ये कैसे रह रही है, कैसे कपड़े पहन रही है। हम तो थे, यस, हम तो थे, यस, किसी के सामने हम नहीं आते थे, यस, हम अच्छे कपड़े पहनते थे, यस, कभी हम बाहर घूमते नहीं थे, घर का काम हम बहुत करते थे, घर पे ना हम मम्मी को हेल्प करते थे। ऐसे देखो कुछ आपको सुनाई देगा, ऐसे बातें हमें सुनने के लिए मिलेंगे घर पे ही, यू नो दैट। तो क्या कर रहे हो, वो उस टाइम का उनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो उन सब का एक्सपीरियंस, उस वक्त का जो उनका एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनका सुन रहे, करते थे, रहते थे। यस, ये जो है ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के पहले हम पूना में रहते थे। बहुत लोगों से आपको सुनने के लिए मिलेगा, लॉकडाउन से पहले हम पूना में रहते थे, लेकिन अब हम पूना में नहीं रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। बहुत लोगों को आपको सुनने में आएगा, लॉकडाउन से पहले हम ये बिजनेस करते थे, वो बिजनेस करते थे, लेकिन अब वो बिजनेस स्टॉप हो चुका है। यस, अब हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं लॉकडाउन के पहले स्कूल वैन चलाते थे, लेकिन अब लोगों ने उस स्कूल वैन का चेंज कर दिया। यस व्हाट, वो वेजिटेबल वैन हो चुकी है। और हम बोलते हैं उनके साथ बातें करते समय, वो सुनाते हैं हमें क्या करना मैडम, क्या करना सर। लॉकडाउन के पहले तो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, तो हम स्कूल की वैन चलाते थे। आई यूज्ड टू ड्राइव स्कूल्स वैन, यू नो अंडरस्टैंड, आई यूज्ड टू डू द बिजनेस ऑफ स्कूल्स वैन। लेकिन लॉकडाउन की वजह से नाउ द स्कूल्स आर क्लोज्ड, यू नो, they are not open, schools are not open, so I have made this van as a vegetable van. I have made this van as a vegetable van. लेकिन लॉकडाउन के पहले हम ऐसे करते थे। ये ऐसे सिचुएशन में बातें करने के लिए बहुत बार आपको सिचुएशन आती है बचपन की बात करने की, बहुत बार सिचुएशन होती है स्कूल टाइम की बात करने की, बहुत बार ऐसे सिचुएशन होती है इसके पहले हम ऐसे करते थे। लातूर शिफ्ट होने से पहले हम ये बिजनेस करते थे, लातूर शिफ्ट होने से पहले हम मुंबई में रहते थे। We used to live in Mumbai before shifting to Latur. We used to live in Mumbai before shifting to Latur. लातूर शिफ्ट होने से पहले हम मुंबई में रहते थे। ऐसे हमें कुछ लिखना होता है, सही है? Yes, in this way we are going to use used to. Yes, और इसी का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, हम नहीं करते थे, right? We used not to miss a single day of our college. हम हमारे कॉलेज का एक भी दिन मिस नहीं करते थे। We used not to miss single day of our college. हम हमारे कॉलेज का एक भी दिन हम मिस नहीं करते थे। देखो नेगेटिव आ चुका है। अब मुझे पूछना है यूज्ड यू। चलो किसी की इंग्लिश डेवलप हो चुकी है, किसी की इंग्लिश डेवलप हो चुकी है, तो आप उसे पूछते हो, क्या पूछते हो? यस, आप हर दिन प्रैक्टिस करते थे क्या, ऐसे पूछना है आपको। रूटीन वाली एक्शन है, एक दिन की एक्शन आप नहीं पूछ रहे हो। एक दिन की एक्शन होती तो आपको सिंपल पास्ट पूछना होता, एक मोमेंट की एक्शन होती तो आप सिंपल पास्ट में पूछते थे डिड यू प्रैक्टिस ऐसे बोलते थे आप। डिड यू वर्क ऐसे बोलते थे। डिड यू गो देयर, क्या आप वहां पे गए थे? तू गेला होता का तिकडे, डिड यू गो। पण मला असं म्हणायचंय की तू जात होता का तिकडे, देयर वॉज द डिफरन्स, दॅट इज द डिफरन्स, यू नो। जात होता का आणि गेला होता का, खात होता का आणि खाल्ला का, तिथे तू राहिला का आणि तू तिकडे राहत होता का। डिफरेंस इज देयर, क्या आप वहां पे रहते थे और तू वहां पे कुछ दिन रहा, इसमें फर्क है इसमें। यस, क्या आप वो खाते थे और क्या तूने वो खाया। यस, क्या आप नॉनवेज खाते थे और क्या आपने नॉनवेज खाया, दोनों में फर्क है ना। यस, डिड यू ईट नॉनवेज और यूज्ड यू टू ईट नॉनवेज। देखो यूज्ड यू टू ईट नॉनवेज,
सही है, खाते थे क्या, यूज्ड यू टू ईट नॉन वेज, खाते थे क्या, वुड यू ईट नॉन वेज, खाते थे क्या, लाइक दिस यू नो। और खाया क्या आपने वहां पे, डिड यू ईट, यू नो दैट। क्या करते थे आप लॉकडाउन के पहले, वॉट यूज्ड यू टू डू, वॉट यूज्ड यू टू डू बिफोर लॉकडाउन, वॉट यूज्ड यू टू डू बिफोर लॉकडाउन। देखो व्हाट यूज्ड यू टू डू बिफोर लॉकडाउन, दैट क्या करते थे। और मुझे पूछना है क्या तूने किया लॉकडाउन के पहले, फर्क है, क्या तूने किया, इसमें रिपीटेशन नहीं है, इसमें रिपीटेशन नहीं है। व्हाट डिड यू डू बिफोर लॉकडाउन, क्या आप उसे मिले थे लॉकडाउन के पहले, डिड यू मीट हिम बिफोर लॉकडाउन। देखो डिड यू मीट हिम बिफोर लॉकडाउन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है क्या आप मिलते थे उससे बार बार, रेगुलर, रूटीन, फ्रीक्वेंटली, क्या आप उन्हें मिलते थे लॉकडाउन के पहले, राइट, यूज्ड यू टू मीट हिम, यूज्ड यू टू मीट हिम, वुड यू मीट हिम बिफोर लॉकडाउन, ऐसे करना है। तो चलो फटाफट चार्ट बॉक्स में आप लिखने जा रहे हो, चार्ट बॉक्स में आप टाइप करने जा रहे हो, आपने किया क्या, आपने खाया क्या, और आप खाते थे क्या। सिंपल पास्ट एंड यूज्ड टू एंड वुड, इसमें क्या फर्क है, सिंपल पास्ट एंड यूज्ड टू एंड वुड, इसमें क्या फर्क है। जो फर्क है, जो डिफरेंस एक्सप्रेस करने वाले दो दो सेंटेंस आप चार्ट बॉक्स में लिखने जा रहे हो, एक यूज्ड टू का सेंटेंस और एक डिड का सेंटेंस, एक यूज्ड टू का सेंटेंस एंड एक वर्ब के सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन, एक यूज्ड टू का नेगेटिव एंड डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव वाला सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस, एक यूज्ड टू का एसनो टाइप वाला क्वेश्चन, दूसरा डिड के साथ सिंपल पास्ट वाला शुरू होने वाला क्वेश्चन, एक WH टाइप का क्वेश्चन कि जो WH वर्ड एंड यूज्ड टू होता है उसके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है रिपीटेड एक्शन के लिए पूछने के लिए वो क्वेश्चन पूछो, और जो दूसरा होता है यस डिड, व्हाट के सामने डिड, वेयर के सामने डिड, एक पल की एक्शन, एक मोमेंट की एक्शन जो खत्म हो चुकी पास्ट में, उसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। सो दिस इज द टास्क आई हैव गिवन टू यू, टिल देन जस्ट आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आप लिखने जा रहे हो चार्ट बॉक्स में यस दोनों जो फर्क है, दोनों फर्क दिखाने वाले जो सेंटेंसेस है आप अभी टाइप करने जा रहे हो चार्ट बॉक्स में, कम ऑन फटाफट फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई की यहाँ पे राह देख रहा हूँ, कम ऑन फटाफट। Come on, come on, come on, come on. The task has been given to you, and just you are gonna type. You're gonna type yes both type of the sentences. और अभी आप लोग समझ लो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है आपने समझ लिया है। यस एक जो है यूज्ड टू वाला, जो वुड वाला जो बोलते हैं, यूज्ड टू वाला जो बोलते हैं, वुड वाला जो बोलते हैं, उसका जो यूज होता है वो फ्रीक्वेंट, रिपीटेड होती थी, लेकिन अब नहीं है, फ्रीक्वेंट होती थी, ध्यान रखो फ्रीक्वेंट होती थी, फ्रीक्वेंट होती थी एक्शन, इसके लिए वुड और यूज्ड टू हम यूज कर लेंगे। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी एक ही एक्शन हो चुकी थी उसका अब कुछ रिलेशन नहीं है, उसका अभी कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, एक बार वो एक्शन होती थी, आई सॉ यू, मैंने तुझे देखा, और आई यूज्ड टू सी यू, मैं तुझे देखता था, फर्क है। यस आई एट, मैंने खाया, आई यूज्ड टू ईट और आई वुड ईट, दोनों में फर्क है। आई मेट, वी मेट लास्ट संडे, हम मिले लास्ट संडे, ठीक है, एक पल का है, लास्ट संडे की एक्शन है, लेकिन हम बोलने जा रहे हैं वी यूज्ड टू मीट एवरी संडे, वी यूज्ड टू मीट लास्ट संडे, एक गलत है, ये ऐसे नहीं होता है, वी यूज्ड टू मीट लास्ट संडे, हम लास्ट संडे मिलते थे। यस यहाँ पे एक्शन रिपीटेड आपने दी है एंड लास्ट संडे का एक ही टाइम है,
लास्ट संडे का एक ही टाइम है, लेकिन आप बात कर रहे हो रिपीटेड एक्शन की, यूज्ड टू मीट बोल रहे हो और उसके सामने आपने लास्ट संडे एक ही टाइम दिया है, यह गलत है। सही है, आप इतना बोल सकते हो, वी यूज्ड टू मीट ऑन संडे, वी यूज्ड टू मीट ऑन संडे, हम संडे के दिन मिलते थे, वी यूज्ड टू मीट ऑन संडे, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, यू नो। सही है, वी यूज्ड टू मीट ऑन संडे, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, हम संडे के दिन मिलते थे। लेकिन वी यूज्ड टू मीट ऑन लास्ट संडे एक गलत हो चुका है, क्योंकि यूज्ड टू मीट ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, बार बार होने वाली एक्शन है, जो पास्ट में रिपीटेड बार बार होती थी एक्शन, और उसके सामने आपने टाइम का रेफरेंस तो बस एक ही दे दिया है, एक टाइम में सिर्फ एक संडे आपने दिया है, इसलिए वो यहाँ पे गलत होता है। चलो, मीरा ने लिखा है व्हाट डिड यूज्ड ईट टू लंच, ये गलत हो चुका मीरा, ये गलत हो चुका है, सिर्फ डिड निकालो यहां से। व्हाट यूज्ड यू टू ईट इन लंच, ये करेक्ट है। यस, डॉक्टर ज्ञानेश्वर ने लिखा है व्हाट डिड यू ईट अर्ली मॉर्निंग, ज्ञानेश्वर करेक्ट। व्हाट यूज्ड यू टू ईट अर्ली मॉर्निंग इन यूर चाइल्डहुड, इन यूर चाइल्डहुड, ये करेक्ट है ज्ञानेश्वर। चाइल्डहुड में आप क्या खाते थे और आज तूने क्या खाया है, दोनों में फर्क है, सही है। वी वेंट टू पुणे, करेक्ट है, एक पल की एक्शन है। वेयर डिड यू गो लास्ट संडे, लास्ट संडे आप कहाँ गए थे, करेक्ट है। वेयर यूज्ड टू गो टू द मूवी, मूवी के लिए आप कहाँ जाते थे, करेक्ट है। रोशांक बोल रहा है डिड यू मीट हर ऑन संडे, आई यूज्ड टू मीट हर एवरी संडे, रोशांक करेक्ट है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम बोलेंगे आई यूज्ड दैट पेन, मैंने वो पेन यूज की, और दूसरा सेंटेंस है अरे जब मैं कॉलेज में था ना तो पार्कर की पेन यूज करता था, आई यूज्ड टू यूज पार्कर पेन, आई यूज्ड टू यूज पार्कर पेन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू यूज, रिपीटेड है बहुत बार, मीन्स बहुत बार मैं पार्कर पेन यूज कर लेता था, वो रिपीटेड एक्शन है, और पास्ट में रिपीटेड होने वाली एक्शन मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। विशाखा लिखने जा रही है आई यूज्ड टू रीड कॉमिक्स इन चाइल्डहुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट विशाखा, आई वॉज रीड कॉमिक्स इन चाइल्डहुड, ये गलत हो चुका है। आई वॉज रेड नहीं होता है, कभी भी वॉज के सामने यहाँ पे रेड नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आई वॉज रेड का मतलब क्या होगा विशाखा, ये पैसिव वॉइस हो गया, मैं पढ़ चुकी थी, मुझे किसने तो पढ़ा है, मैं किसी से पढ़ चुकी थी, बोले तो किसी ने आपको पढ़ा है, ऐसे मीनिंग होने जा रहा है। तो आई वॉज रेड नहीं, वॉज निकालो और वहां पे रखो आई रेड, दैट इज करेक्ट, यू नो। हनुमान लिखने जा रहा है आई यूज्ड नॉट टू ऑपरेट मोबाइल रेगुलरली, करेक्ट है। डिड यू स्पीक ऑन दिस प्रोग्राम, यस करेक्ट है, डिड यू स्पीक इन दैट प्रोग्राम और इन दिस प्रोग्राम, ये आप लिख सकते हो। या नंदिनी लिखने जा रही है विथ हुम डिड यू कम टू द कैफे लास्ट नाइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट नंदिनी, आप किसके साथ लास्ट नाइट आ चुके थे कैफे के ऊपर, करेक्ट है, सिंपल पास्ट है, एक पल की एक्शन है, बस लास्ट पल की मीन्स लास्ट नाइट की बात है, एक ही दिन की बात है, बस कल की बात कर रहे हैं, लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, और लास्ट नाइट आप किसके साथ आए थे, बस इतना हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। नंदिनी ये आपका करेक्ट है। विथ होम यूज्ड यू टू गो डांस क्लास एवरी सैटरडे एट 5 o'clock, यू नो, ये रूटीन के लिए पूछ रही है, लेकिन वो पास्ट वाले रूटीन, वो जो रूटीन अब बंद हो चुकी है, वो रादर अभी डांस क्लास नहीं जाती है, 5 बजे वो जाती थी, लेकिन यहाँ पे नंदिनी पूछ रही है कि तू किसके साथ जाती थी, 5 बजे डांस क्लास के लिए जाती थी मिस वो रिपीटेड एक्शन थी, बार बार वो पास्ट में होती थी, रिपीटेडली होती थी, इसीलिए वो रिपीटेशन बार बार जाना, यस वो हैबिचुअल, वो रूटीन सी चीज थी उसके लिए, वही रूटीन की चीज, रूटीन की एक्शन, रिपीटेड एक्शन बताने के लिए उसने पूछा है। विथ whom यूज्ड यू टू गो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है और इसका मीनिंग अलग है। एंड विथ whom डिड यू गो, इसका मतलब अलग है, विथ whom डिड यू कम, इसका मतलब अलग है। नालंदा निकले जा रही है व्हाट वी यूज्ड नॉट टू मिस इवनिंग गॉसिप्स इन हॉस्टल डेज, यस करेक्ट है नालंदा, करेक्ट है। डॉक्टर ज्ञानेश्वर लिख रहे हैं वी यूज्ड टू यूज, यस व्हाट Ruda for breakfast in our childhood, yes you are absolutely right Naneshwar, we used to use that, means use के जगह Naneshwar आप लिख सकते हो
ईट लिखोगे तो यूज करने की जगह खाते थे ऐसा उसका मीनिंग हो जाएगा और उसका मीनिंग एप्ट आएगा, सही मीनिंग आएगा। तो आप वहां पे लिख सकते हो ईट, ईट दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट वर्ड फॉर दैट सिचुएशन। हम खाते थे, यूज करना ये खाने के लिए हम नहीं यूज करते कभी ये यूज वाला वर्ड, खाने के लिए डायरेक्टली हम ईट ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो वी यूज टू ईट हुरडा इन द ब्रेकफास्ट इन आवर चाइल्डहुड, खाते थे। लेकिन आज जो आपने ब्रेकफास्ट ली है, राइट, आज मॉर्निंग आपने जो ली है, आई एट उपमा और पोहे इन द मॉर्निंग फॉर द ब्रेकफास्ट। सिर्फ ऐसे सेंटेंस जब होता है तो ज्ञानेश्वर यहाँ पे आज की ही बात कर रहे हैं। क्या आज की बात हो रही है? आई एट नॉट आई एट पोहे और उपमा और समथिंग इन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये आज की बात हो रही है। लेकिन वी यूज टू ईट हुरडा, ये लास्ट, तब चाइल्डहुड में यस रिपीटेडली वो हुरडा खाते थे। यस ऐसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। सिया, ओ माय गॉड सिया, कितने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। या गुड सिया गुड इवनिंग। आई यूज्ड टू फाइट विथ माय फ्रेंड्स इन माय स्कूल डेज। यू आर एब्सोल्युटली राइट सिया, यस हम फाइट करते थे। और देखो सिया ने अभी उसके भाई के साथ झगड़ा किया है थोड़ी देर के पहले, तो वो बोलेगी आई फॉट विथ माई ब्रदर, आई फॉट विथ माई ब्रदर इन द मॉर्निंग। आज सुबह मैंने ब्रदर के साथ मेरा झगड़ा हो चुका, मैंने झगड़ा किया। आई फॉट विथ माई ब्रदर इन द मॉर्निंग। ये देखो एक ही मोमेंट है, एक मोमेंट, एक पल की बात, एक पल की बात, पास्ट वाली एक पल की बात, एक मोमेंट की बात आपको सिर्फ यहाँ पे बतानी है। एक मोमेंट, एक पल की बात पास्ट की बतानी है, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लो, में सिंपल पास्ट करो। और पास्ट में बार बार ऐसे रिपीटेड वो एक्शन होती थी। ध्यान दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिमाग में नहीं होता है, हम कहीं भी कुछ भी यूज कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखो, स्पेसिफिक सिचुएशन देके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्पेसिफिक सिचुएशन देके बोल रहा हूँ। इस सिचुएशन में ये यूज करो, उस सिचुएशन में ये यूज करो। सिचुएशन आपके सामने मैं क्रिएट करके दे रहा हूं और आप उसके ऊपर एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। दैट्स गोइंग गुड, दैट्स गोइंग ग्रेट, यू नो दैट। सो कम ऑन सो व्हाट आई एम टॉकिंग, जब कभी भी बार बार रिपीटेड ऐसे कुछ होता था, लेकिन अब होता नहीं है, बंद हो चुका है। यूज कर लो यूज टू, नहीं तो उड़, यूज कर लो यूज टू, नहीं तो उड़, दोनों में से एक। यूज करो यूज टू, नहीं तो उड़, दोनों में से एक यूज करो। चलो, हमने वो किया, बार बार नहीं, एक पल की बात है, एक वक्त की बात है, एक टाइम की बात है। हमने वो किया, we did, I saw, I met you, I discussed with you, we discussed with him, you know that. What did you do? How did you go there, you know? What did you eat in the morning? How did you reach there? When did you reach there? Which newspaper did you read? Which newspaper did you read yesterday? Did you read the Times of India? अब देखो, मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई मुझे पूछेगा सर कॉलेज डेज में क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे? कॉलेज डेज में क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे? तो मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या सर, एक्सक्यूज मी सर, used you to read the Times of India in your college days? Used you to read Times of India in your college days? क्या आप आपके कॉलेज डेज में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे? Used you to read the Times of India। आराम से सेंटेंस बोल रहा हूं क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए। Used you to read the Times of India in your college day? Would you read the Times of India in your college days? Would you read, क्या आप पढ़ते थे? Used you to read, क्या आप पढ़ते थे? और दूसरा देखो, मैं पूछने जा रहा हूं, Did you read? Did you read, क्या आपने पढ़ा है? क्या आपने पढ़ा है? My teacher used to make us write on slate, you know। सही है, हमारे टीचर हमें ये स्लेट के ऊपर लिखने के लिए देते थे और हमें लिखने लगाते थे, यू नो। हेल्पिंग वर्ब है, यू आर एब्सोल्युटली राइट यहाँ पे नंदिनी। एंड हर सन रोट अल्फाबेट्स ऑन स्लेट, यू नो। उसके सन ने स्लेट के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं। नंदिनी, और एक मैं आपके लिए टास्क देने जा रहा हूँ, ऐसे ही
यस, कंपेयर करने वाले आप क्वेश्चंस जो है टाइप कर लोगे। कंपेयर करने वाले सिंपल पास्ट वाला क्वेश्चन मीन्स एक वक्त वो एक्शन हो चुकी नहीं हो चुकी ऐसे पूछने के लिए यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप टाइप कर लोगे एक टाइप का सिंपल पास्ट के लिए। और वैसे ही डब्ल्यूएच और एस नो टाइप क्वेश्चन आप यस यूज टू और वुड का जो भी है आप टाइप कर लोगे। दोनों का कंपेयर यहाँ पे क्वेश्चन में कर लो नंदिनी, कोई भी आप टाइप कर लेते हो। तो देखो, व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, ये, एंड व्हाट डिड यू यूज टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, दोनों का डिफरेंट देखो। व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट ये डिफरेंट है, व्हाट डिड यू व्हाट यूज्ड यू टू ईट इन द ब्रेकफास्ट ये कुछ अलग है। What used you to eat in the breakfast and what did you eat in the breakfast, दोनों में फर्क है। और तीसरा देखो, what have you eaten in the breakfast, तीनों में क्या फर्क है, कैसे फर्क है तीनों में देखो। What have you eaten, what did you eat and what used you टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये सेंस क्लियर होना चाहिए, बातें करने के लिए यही सेंस होना चाहिए। ये क्या फर्क है, कब ये कौन सा यूज होना होता है, कौन से सिचुएशन में यूज करना होता है, ये बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेंस क्लियर होना जरूरी है। समझिए फ्रेंड्स, ये तीनों का फर्क मुझे आप बताने जा रहे हो। देखो मैं पूछ रहा हूं आपको, यस, व्हाट यूज्ड यू टू ईट इन द ब्रेकफास्ट एक है, नंबर 2 what did you eat in the breakfast, and number 3 is there, what have you taken in the breakfast, what used you to eat in the breakfast, what did you eat in the breakfast and what have you eaten in the breakfast। ये तीनों में क्या फर्क होता है, चलो चलो चलो, मीनिंग में क्या फर्क है ये तीनों के, what is the difference in the meaning, चलो ये तीनों के मीनिंग में क्या फर्क है, come on, yes I'm waiting। what used you to eat in the breakfast एक, what did you eat in the breakfast 2 and what have you eaten in the breakfast 3। और एक देखो 4 नंबर, what do you eat in the breakfast, yes, what used you to eat, what did you eat, what have you eaten and what do you eat। चारों में फर्क फटाफट समझना है आपको, फटाफट आपको मेंशन करना है। what used you to eat, what did you eat in the breakfast, what have you eaten in the breakfast and what do you eat in the breakfast। come on 4 क्या डिफरेंस है, come on। श्रद्धा ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। डिड यू वॉच मैच लास्ट नाइट, करेक्ट है। हाउ यूज्ड यू टू वॉच मैच इन योर चाइल्डहुड, करेक्ट है। हैव यू वॉच्ड मैच यस्टरडे, ये गलत है। नालंदा, हैव यू वॉच्ड मैच यस्टरडे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, हैव यू वॉच्ड बोल रहे हो, यस, और हैव के साथ साथ आप यस्टरडे लिख रहे हो। हैव ये प्रेजेंट वाला है, yesterday ये पास्ट वाला है, have ये प्रेजेंट वाला है, yesterday ये पास्ट वाला है। कम ऑन, ये नहीं होता है। यस, yesterday के साथ कभी have नहीं आएगा, have के साथ कभी yesterday नहीं आएगा, यह हमें ध्यान रखना है। मीरा लिख रही है verb, noun, helping, model, क्या है ये? चार एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, क्या? What used you to eat in the breakfast, ये एक था। What did you eat in the breakfast, ये 2 था। What have you eaten in the breakfast, ये 3rd है। What do you eat in the breakfast, ये 4th है। चारों के मीनिंग्स में क्या फर्क है, चारों के मीनिंग्स में क्या फर्क है, that I want to know, what is the difference। Yes, among 4 sentences meaning, कौन से सिचुएशन में ये कौन सा यूज होगा, सेंटेंस लिखो, उसके सामने बस सिचुएशन लिखो। चलो चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। रूपाली ने लिखा है व्हाट यूज टू ईट
इडली इन ब्रेकफास्ट, यू नो दैट आई यूज्ड टू ईट, वो कैंसर्स दिए है वर्ब, आई एट इडली, ओके। मुझे बेटा यहाँ पे डिफरेंस बताना है। क्या सिचुएशन लिखो, सिचुएशन लिखो और उसके सामने सेंटेंस लिखो, सिचुएशन लिखो और उसके सामने सेंटेंस लिखो। सिचुएशन नंबर 1, राइट, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यूज्ड टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, हो चुकी एक्शन, एक बार ही हो चुकी, उसका अभी रिलेशन प्रेजेंट के साथ नहीं है, इसे ही बोलते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, नाउ नॉट एग्जिस्टेड। तीसरे, एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट बट कनेक्टेड विथ नाउ, एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट बट कनेक्टेड विथ नाउ, ये थर्ड सिचुएशन है। एंड द एक्शन टेक्स प्लेस एवरी डे, एंड द एक्शन हैपन्स एवरी डे, टेक्स प्लेस एवरी डे, ये फोर्थ सिचुएशन है। ये 4 सिचुएशंस अभी अभी मैंने आपके सामने रख दी है। नंबर 1, आई यूज्ड टू ईट, आई, है ना, व्हाट और आई, व्हाट आई से, व्हाट यूज्ड यू टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, ये बार बार होने वाली रूटीन वाली एक्शन, रिपीटेड एक्शन पास्ट की है। व्हाट यूज्ड यू टू ईट, तू क्या खाता था ब्रेकफास्ट में, पास्ट रिपीटेड है। दूसरा देखो, व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, सिंपल पास्ट की एक्शन है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आंसर में होता है, लेकिन यहां पे मैंने क्या दिया है आपको, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यू नो, और ये सिंपल पास्ट हो गया, एक टाइप का ही एक्शन हो गया ये। उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको, व्हाट हैव यू ईटन इन द ब्रेकफास्ट, अभी अभी आपका ब्रेकफास्ट हो चुका है, थोड़ी देर के पहले ब्रेकफास्ट हो चुका है, नो डाउट, लेकिन मुझे वो नाउन के साथ यहां पे जोड़ना है और मुझे पूछना है तूने क्या खाया है ब्रेकफास्ट में, आज यूज करना है तो कर सकते हो, व्हाट हैव यू ईटन इन द ब्रेकफास्ट टुडे, ऐसे भी करना है तो आप कर सकते हो, आपने क्या खाया है बोल के नाउ के साथ कनेक्ट है, व्हाट हैव यू ईटन, इसके साथ कभी भी पास्ट के टाइम इंडिकेटिंग वर्ब्स नहीं आएंगे। और मैं लास्ट बोल रहा था आपको, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, ये रूटीन है, हर दिन के लिए मैं पूछ रहा हूं आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, ये समझना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये सिचुएशन जब समझ में आते हैं तो यही हमारे डे टू डे लाइफ के बातें करने के सिचुएशंस होते हैं। डे टू डे लाइफ में ऐसे ही सिचुएशंस में हम बातें कर लेते हैं और यही सिचुएशंस हम एक्सप्रेस कर लेते हैं और यही सिचुएशंस हमें लोगों के सामने रखनी होती है। तो देखो, ये सिचुएशंस हमें बाइफर्केट करना जरूरी है, ये सिचुएशंस कैसे बाइफर्केट करते हैं ये दिमाग में आना जरूरी है। तो नंदिनी क्या लिखती है, डॉक्टर ज्ञानेश्वर क्या लिखते हैं, हम देख लेंगे। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, ओके, पहला सिंपल पास्ट एक्शन, सेकंड कंप्लीटेड इन पास्ट बट कनेक्टेड विथ प्रेजेंट, दैट इज थर्ड, एंड फोर्थ यहाँ पे बचा है, फोर्थ आपने नहीं लिखा है, और फोर्थ है डे टू डे रूटीन एक्शन, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट के लिए। यहां पे देखो नंदिनी लिखती है यूज्ड टू, हैबिचुअल एक्शन है जो फर्स्ट एक्शन है, सेकंड जो डीड वाला है एक्शन ऑफ पास्ट है, सिंपल पास्ट है, हैव ईटन जो होता है एक्शन ऑफ पास्ट बट रिलेटेड टू प्रेजेंट, वेरी ट्रू नंदिनी, एंड जो डू होता है मीन्स आई व्हाट डू यू टेक इन द ब्रेकफास्ट, वो एवरीडे वाले एक्शन है। मैं आपको पूछ रहा हूँ एवरीडे की आपकी हैबिट क्या है, एवरीडे आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, क्या खाते हो, ये एवरीडे की एक्शन मैं आपको पूछने जा रहा हूँ। That's the thing we have to remember. यही जो 4 स्टेजेस है। नाउ देखो, और एक मैं आपको पूछने जा रहा हूं, What are you eating in the breakfast? What are you eating breakfast in Miss Now you know? ये नाउ की एक्शन में बात कर रहा हूं, नाउ की एक्शन में बात कर रहा हूं। यहीं पे सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी मुझे पूछना पड़ेगा, अरे तू क्या खाएगा ब्रेकफास्ट में, What will you eat in the breakfast? What will you eat in the breakfast? You know, कभी कभी हमें पूछना पड़ता है हमें क्या खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, क्या खाना चाहिए, किसी का आप एडवाइस ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो, तो यहां पे आप बोल सकते हो What should I eat in the breakfast? और आप बोल सकते हो What should we eat in the breakfast? हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाते थे हम ब्रेकफास्ट में, What would we eat in the breakfast? क्या खाते थे, यू अंडरस्टैंड, क्या हम खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, What can we eat in the breakfast? क्या खा सकते हैं, क्या खा सकते थे हम कल,
What could we eat in the breakfast yesterday? What could we eat? क्या खा सकते थे? What could we eat in the breakfast? What could we eat? You know that. क्या हम खाएंगे? Possibility. What may we eat? What might we eat? You know that. हमें क्या खाना ही चाहिए? What must we eat in the breakfast? What must we eat in the breakfast? इस ब्रेकफास्ट तो ऑब्लिगेशन नहीं होगा, राइट? और टू हम ऑब्लिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। तो ऐसे ब्रेकफास्ट के सिचुएशन में हम ऑट टू नहीं यूज कर लेंगे। हमें ब्रेकफास्ट खाने की जरूरत नहीं है। क्या खाने की जरूरत नहीं है? नीड नॉट यूज करो। वॉट नीड वी नॉट, वॉट नीड वी नॉट टू ईट इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या खाने की जरूरत नहीं है? वॉट नीड वी नॉट टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, राइट? ब्रेकफास्ट में क्या खाने की हिम्मत नहीं है? वॉट डेयर यू नॉट टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, वॉट डेयर यू नॉट टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, यू नो। यस, एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं used to की बात हो रही है। What used you to eat in the breakfast? क्या खाते थे? जैसे डॉक्टर ज्ञानेश्वर बोले हम हुरडा खाते थे चाइल्डहुड में, ठीक है। यस, आजकल हुरडा पार्टी लोग करते हैं, लेकिन चाइल्डहुड में वो ब्रेकफास्ट में लेते थे। What would you eat? He wrote that we would eat, we used to eat hurda in our breakfast. That's what you know. नंदे ने यहाँ पे लिखा है used you to go library every Monday, correct है बेटे, with your friends, helping verb है। did you go to library with her, यहाँ पे simple past है। yes she has, yes clear here, दो questions उसने लिखे हैं, एक है used to का क्वेश्चन और दूसरा है सिंपल पास्ट का क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे नंदिनी ने दो क्वेश्चंस हमारे सामने रखे हैं, एक यूज्ड टू वाला और दूसरा है डिड वाला, यू नो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है सिंपल पास्ट का किसके साथ गया थू, और दूसरा है यूज्ड यू टू गो लाइब्रेरी एवरी मंडे, क्या आप एवरी मंडे लाइब्रेरी जाते थे, ये यूज्ड टू के साथ होता है। हाँ, तो अब देखो जो जरूरी है अभी बताना, पैसिव वॉइस इसका कर लेते हैं। ये सुनने से पहले ही बहुत लोग निकल चुके हैं, ठीक है, उन्हें बहुत काम होगा, बिजी होंगे। यस, निकल चुके हैं, इट्स गुड, कंग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन आप यहाँ पे रुके हो तो आप सबके लिए अब इसका पैसिव वॉइस करना है। तो कैसे पैसिव वॉइस में ये यूज होता है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सही है? यस, तो पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को लगा भी होगा कि कहाँ गया पैसिव वॉइस। सही है, तो अब मैं आपके सामने पैसिव वॉइस रख लेता हूँ। इसका पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो आप सबको मालूम है पैसिव वॉइस करते समय जो फोकस होता है रिसीवर के ऊपर होता है। सही है ना? वेयर इज द फोकस? रिसीवर के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस देना पड़ता है। जब कभी भी हम पैसिव वॉइस कर लेते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, यू नो। देखो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं व्हाट शी यूज्ड टू ईट, व्हाट शी used to eat one apple every day. She used to eat one apple every day in her breakfast. देखो यहाँ पे हम टाइप भी कर लेंगे, she used to eat one apple every day in her breakfast. इस सेंटेंस को आप सभी लोग देखो, she used to eat one apple every day in her breakfast. सही है ना? This is active voice because focus है she, उसके ऊपर फोकस है, उसके ऊपर फोकस है, फोकस इज देयर ऑन शी, यू नो दैट। वो खाती थी, ऐसे फोकस है। सही है? अब देखो हमें फोकस देना है एप्पल के ऊपर, वन एप्पल। वन की जगह आप एन भी यूज कर सकते हो, एन का भी मतलब वन ही होता है, वो आर्टिकल है, तो आप लिख सकते हो एन एप्पल भी। तो देखो हमारा फोकस है एन एप्पल के ऊपर, पैसिव वॉइस करने जा रहे हो। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है इस सेंटेंस में? एन एप्पल, ये रिसीवर है, तो ले लो इसे सामने,
राइट, सामने लेना है और यहाँ पे लिखना है। क्या होता है पैसिवाइज? तो पैसिवाइज ऐसे होता है, एन एप्पल, एन एप्पल, देखो एप्पल लिखा है मैंने, एन एप्पल, पैसिवाइज करना है, एन एप्पल यूज्ड टू बी eaten by her every day in her breakfast। देखो क्या हो चुका है, या नंदिनी ने लिखा है वन एप्पल यूज्ड टू बी ईटन by her every day in her breakfast। that is now correct, that is passive, क्यों? एप्पल के ऊपर हमें फोकस देना था, सही है ना, एप्पल के ऊपर हमें फोकस देना था। तो एप्पल के ऊपर जब कभी भी हमें फोकस देना है, या विशाखा ने भी लिखा है एन एप्पल यूज्ड टू बी ईटन एवरी डे बाय हर, करेक्ट। एप्पल यूज्ड टू बी ईटन बाय हर एवरी डे इन हर ब्रेकफास्ट, करेक्ट है। मीरा लिखने जा रही है एन एप्पल यूज्ड टू बी ईटन बाय हर एवरी डे इन हर ब्रेकफास्ट, दैट इज करेक्ट। तो ऐसे इसका पैसिवाइज होता है। तो सिचुएशन आपके दिमाग में आ चुकी है, यूज टू कहाँ यूज करना है, और इसका पैसिवाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यूज टू के सामने बी लगाना है और बी के सामने वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, और जो भी रिसीवर है जिसके ऊपर एक्शन होती है, जो भी रिसीवर है वो रिसीवर, और जो जिसके ऊपर एक्शन होती है तो वो सामने आएगा, एट द बिगिनिंग आएगा। सी आर, यू आर करेक्ट, राइट। वी फोकस्ड ऑन एन एप्पल, बेटे सही है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पैसिव सेंटेंस, करेक्ट है बेटे। हमने फोकस किया है इसके ऊपर, एप्पल के ऊपर फोकस किया है, एंड हमें बताना है, खास करके बताना है, एप्पल है ना, उससे खाया जाता था एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, फोकस हमारा एप्पल के ऊपर है, बातें हमारी एप्पल की हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज करना होता है पैसिवाइज। इस सिचुएशन में हमें बातें करनी होती है पैसिवाइज की, और यहाँ पे हमने बातें की है यूज टू का पैसिवाइज कैसे करना है। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बाय वन सेंटेंस, दैट एक सेंटेंस है, हमने ऐसे यहाँ पे डिस्कस करना है। और एक सेंटेंस में आपको बोलने जा रहा हूँ, व्हाट, यस, वन सेंटेंस दैट जो भी है, yes, English language used to be spoken by her in the college. English language used to be spoken by her in college. All work used to be completed. All work used to be completed by her on time in college life. But now she cannot complete. She doesn't complete. Yes. All work used to be completed by her on time in college days. कॉलेज डेज में पूरा का पूरा काम उससे ना टाइम पे कंप्लीट किया जाता था, लेकिन अब जो है ना she doesn't do that, वो अब नहीं करती है। Yes, in that way you are going to speak, काम के ऊपर फोकस है, इसलिए यहाँ पे यूज टू यूज किया एंड उसका पैसिवाइज आपने किया है। तो ऐसे ही हम पैसिवाइज इसका कर लेते हैं, यूज टू के सामने हमें बी यूज करना है और बी के सामने हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यूज टू के सामने हमें बी यूज करना है एंड बी के सामने हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यूज टू, उसके सामने बी और बी के सामने थर्ड फॉर्म। चलो आप आपका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो पैसिवाइज का, चलो आप आपका कोई एग्जाम्पल पैसिवाइज का दे सकते हो। कम ऑन, जस्ट यू आर गोइंग टू पुट योर ओन एग्जाम्पल ऑफ पैसिवाइज। आप खुद का कुछ पैसिवाइज का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, फटाफट एक एग्जाम्पल लिखो पैसिवाइज का, देन वी आर गोइंग टू एंड इट, दैट। और कुछ मैं भी आपको बता दूं पैसिवाइज का सेंटेंस आई वांट। कम ऑन, हु विल राइट? Yes, I'm waiting for your example. Passive sentence. Just you are going to write passive sentence where you have used to का use आपने किया है
और उसी का पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप यहाँ पे लिखने जा रहे हो। आई थिंक अर्चना हैज लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अर्चना जी आपने प्लेटफॉर्म पहले 10-15 मिनट में ही छोड़ दिया है, अब कुछ भी नहीं लिखने जा रहे हो यहाँ पे। राधिका, अर्चना मगर, राइट, nobody is writing over here. Okay, fine. I think Aini is absent today. Neha Desai is absent today. Okay, fine. Come on. What I want, yes, you are gonna write 2-3 examples of passive voice. चलो passive voice के कुछ आप examples यहाँ पे लिख सकते हो। देखो आप लिख सकते हो क्या passive voice का example, क्या कर सकते हो आप passive voice? That's I want to check, you know that. मैंने तो आपको बताया था कैसे passive voice करना होता है, कैसे sentences होते हैं, लेकिन अब मैं आपसे चाहता हूँ कि कुछ examples आपने यहाँ पे passive voice के लिखने हैं। Come on. Nandini. My grandpa used to fetch water from well. Active है. Water used to be fetched by my grandma from wells. You know that. Correct है. Nandini, you are absolutely right. You are absolutely right. बाकी लोग कोई नहीं लिख रहे, okay? नहीं लिख रहे. It's okay. आपने लिखा है. It's truly good. श्रद्धा लिख रही है. Black and white TV used to be used by them. You are absolutely right. Black and white TV used to be used by them. Black and white TV used to be used by us. You know that. Correct है. और कोई? Come on. Is there anybody who is going to write? Dare to write. सिया लिख रही है. A beautiful gift is given by me to my friend at her birthday. Okay बेटे, ये करेक्ट है, लेकिन हमारी बात चल रही used to की। सिया, used to का पैसिवाइज करना है, used to use करके पैसिवाइज करना है। That's I'm expecting from you. I used to throw stones on dogs. On dogs used to be thrown stones. गलत हो गया। Stones फेंकते थे आप, stones के ऊपर एक्शन होती थी, dogs के ऊपर नहीं है, तो stones के ऊपर बोलो। Stones used to be thrown on the dog by us. Stones used to be thrown on the dog by us. You know that is correct. You know. Yes. Yeah. Good evening. Marathi language used to be spoken by her. Okay, good one. Nalanda has written. Meera लिखती है. An electronic copy used to be by her in the exams. You know that. Used to be by ऐसे नहीं हो जाएगा. By क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉपी वर्ब ही नहीं है वहां पे मीरा। यस, वर्ब कौन सा है आपको? एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यूज्ड टू बी के सामने वर्ब चाहिए मीरा, तो आपने वर्ब नहीं लिखा है। ब्लैक ड्रेस यूज्ड टू बी टेकन बाय हर, इट इज करेक्ट। ब्लैक ड्रेस यूज्ड टू बी टेकन बाय हर, करेक्ट। यू नो। और कोई विशाखा लिख रही है मोबाइल यूज्ड नॉट टू, वहां यहाँ पे विशाखा मोबाइल यूज्ड नॉट टू बी ऐसे करना है। मोबाइल यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड, या मोबाइल नॉट टू बी यूज्ड। या अर्चना, यू आर देयर बट यू आर नॉट राइटिंग। यस चौरे किशोर, गुड इवनिंग। Yes, Archana, you are there, but you have to write something. You are not writing anything, so I said that you are not here. Okay. And ice cream used to be eaten by Ritu every day. You are absolutely right, Nalanda. You have got this concept. आपके दिमाग में एक concept आ चुकी है, लेकिन बाकी लोग मीरा जी लिखो। Yes, come on. Yes, सुनने में और रूल्स में बहुत इजी होता है ये, लेकिन जब आप लिखने जाओगे, यूज करने जाओगे, बातों में, अभी तो देखो लिखने के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन जब कभी भी आपको बातें करने हैं, कम्युनिकेशन करना है, यस, आपको डायरेक्टली इसका यूज करना है। आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी लिटिल मोर डिफिकल्ट, यू नो, राइट? तो प्लीज वर्क ऑन दिस, इसके ऊपर काम करो, गलतियां करो, लिखो, बातें करो, बोलो, गलतियां जितनी हो जाएंगी उतना हम यहाँ पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो आई एम श्योर यू हैव गॉट इट, आपके दिमाग में आ चुका है। एंड यूज टू का यूज जो भी होता है ये आपके दिमाग में आ चुका है। और कल जो है ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने खत्म किए हैं, तो कल हम कुछ अलग चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। देखो सभी के सभी टेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, सभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सभी टाइप्स के सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, राइट? तो कल थोड़ा और एक हम काम कर लेंगे, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इनका पैसिव वॉइस कौन से सिचुएशन में यूज कर लेते हैं, उसके ऊपर कुछ हमारा डिस्कशन हो जाएगा। एंड देन वी विल स्टार्ट टू द न्यू टॉपिक, यू नो।
सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ओवर हियर। या यहाँ पे रुकने के लिए आपका मैं रियली मीन्स आई एक्सप्रेस माई थैंक, यू नो, दैट तहे दिल से थैंक आई एक्सप्रेस, यू नो, एंड आई एम श्योर tomorrow we are going to meet and we are going to meet with some different topic tomorrow. Imperative sentences हम कैसे यूज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में, दैट्स व्हाट वी शैल डिस्कस टुमारो, यू नो। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं कल यही प्लेटफॉर्म के ऊपर 7 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन टुमारो। कल मिलते हैं। यार रोशांक तेरा डाउट है तो व्हाट्सएप के ऊपर टाइप कर लो। रोशांक तेरा जो डाउट है तो अपने ग्रुप के ऊपर टाइप कर लो, मैं उसका सोल्यूशन दे दूं। जिसे भी कुछ डाउट होता है तो अपने ग्रुप के ऊपर टाइप कर लो, उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे मैं दे दूं, यू नो दैट। ओके, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन टुमारो, शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू, यू नो दैट। ओके, फाइन फाइन फाइन।